in India and beyond. His dedication to nurturing young minds is truly inspired. So please give a huge round of applause and welcome him to the stage. Mr. Rajesh Ji, Branch Head, Ultratech Cement, Sanjay Ji Sastri, parents, school chairman, Sampath Ji Beniwal, school principal, Pratik Ji Bhatti, teachers and beloved students. This function is very important because through this function we are inculcating the values of leadership. Everywhere in the world, people are looking towards the leaders. And India is such a wonderful country where we can say we always lead the world. We are the ancient country, but we are the youngest country in the world. Youngest generation we have here. And the generation is nurtured the schools. Schools are known for leadership because every child gets education from a school, and we can say the nursery of leadership. Parents are sending their wards in this beautiful place where the teachers inculcate the values for the leadership, and let them where they will lead the country in different spheres of community, society, and international relationships. We have the very wonderful leaders, ideals for our youngers, from Vivekananda ji to our Prime Minister Narendra Modi ji, because everywhere we are looking for the leaders. If you talk about the companies, organizations, different institutions, whether it is police, civil services, banks, corporate fields, everywhere the people are looking for the leaders. And the schools are one of the best places where leadership can be inculcated in a good manner. And this is the first lesson that today we are celebrating this day for the Students' Council. And Students' Council we have head boy, head girl, and different secretaries and club members and presidents, as well as house captains, house prefects, and the whole of the session they will organize different activities in the school, and the needs of other students who will follow their leaders will be fulfilled. They will work with the teachers, they will work with the authority, they will work with the management. Later on, when they will grow up, they will lead the country in different spheres, from management to international relations. I wish to all of them the best, that they will lead the country, they will lead the society, they will lead their families. And I also welcome the dignitaries who came here sparing a lot of time. Thanks to all of you, and welcome again to all of you who came here for this, we can witness of this investor ceremony today. Thank you. Sabhai Namaha, Honorable Chief Guest, Mr. Anuj Raji, Unit Head, Ultratech, Mr. Rajesh Sibradia ji sir, Nirmala ji madam, Director sir GPS, Bhatti sir, GPS की धरोहर प्यारे बच्चों, GPS को अपनी त्याग तपस्या और बल साधना से शीश रहे शिक्षक गण, विद्वान साथी गण, आज मौका है और दस्तूर भी है। बहुत सारे लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना मान रखा, ध्यान रखा, तपस्या की, त्याग किया, बलिदान किया।
सबसे पहले बात मैं जीपीएस के शिक्षकों से करूंगा। शिक्षकों के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। एक मंदिर का पुजारी पूजा करता है, उससे बड़ी जिम्मेदारी तो किसी के पास में है, एक टीचर के पास में, एक शिक्षक के पास में है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें आने वाली धरोहर को सजोने की जिम्मेदारी दी है। आप ये मत देखिए कि ये संस्था में मुझे कितना वेतन मिल रहा है, डायरेक्टर से मुझे जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आपका केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य कि यहाँ पर आने वाले प्रत्येक स्टूडेंट के मन और मस्तिष्क में केवल एक बात हो, उसके भीतर का इंसान जिंदा रहना चाहिए, उसके मन मस्तिष्क में भारत माता के प्रति त्याग और तपस्या की भावना होनी चाहिए, क्योंकि जीपीएस ने करके भी दिखाया है। साथियों, एक इंजीनियर से भी गलती हो जाए तो पुल का निर्माण टूट सकता है, हो सकता है 20-30 लोगों की जान जा सकती है। साथियों, यदि एक डॉक्टर गलत तरीके से डॉक्टर बन जाए तो हो सकता है वो कुछ लोगों को हरिद्वार जाने की तैयारी भी करवा सकता है, लेकिन यदि एक शिक्षक से गलती हो जाए तो शिक्षक पूरे राष्ट्र को खत्म कर सकता है। इसीलिए शिक्षक को अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभानी चाहिए, उसके चेहरे पर वो आभा, वो तेज झलकना चाहिए। ये तेज त्याग का होना चाहिए, बलिदान का होना चाहिए। उसके भीतर पैसे का कोई लोभ, लालच, ये कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा चाणक्य का वो किस्सा, जब मगध के सम्राट घनानंद ने कहा उस चाणक्य को देकर के, चाणक्य क्या आज तू ज्ञान की बात नहीं करेगा? तू आज क्या शिक्षा की बात नहीं करेगा? क्या तू आज मेरे से धन नहीं मांगेगा? तो चाणक्य का वो घमंड भरा जवाब था कि मेरे ज्ञान में, पुरुष में, मेरे ज्ञान में ताकत रही, ये मेरा ज्ञान ही मेरा धन है, और यदि मेरे ज्ञान में ताकत होगी तो मैं तेरे जैसे ना जाने कितने चंद्रगुप्त, कितने सम्राट तैयार कर सकता हूँ। फिर उन्होंने घनानंद ने कहा, वाह, एक साधारण से ब्राह्मण, एक शिक्षक में इतना घमंड। तो फिर चाणक्य ने पलट के कहा, रे घनानंद, तू शिक्षक को सामान्य समझने की भूल मत कर। शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों रहते हैं। शिक्षक जब चाहे निर्माण कर सकता है और शिक्षक जब चाहे प्रलय कर सकता है। इसलिए यदि जीपीएस की सबसे बड़ी कोई धरोहर है वो केवल शिक्षकगण है। छात्रों, आपसे केवल यही बात कहनी है कि आपके माँ बाप, आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स जिस सपने के साथ, जिस लक्ष्य के साथ, जिस मंजिल के साथ तुम्हें यहाँ पर भेज रहे हैं, उनका सपना जिस दिन सच हो जाएगा उसी दिन वे अपने आप गंगा के स्नान किए के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि माँ की करुणामयी वो आंखें, पिता की उम्मीद, पिता का त्याग तुम्हें तैयार करके यहाँ भेज रहा है। किसी ने राम कहा, किसी ने रहीम कहा, किसी ने राम लिखा, किसी ने रहीम लिखा। लिखने की बारी जब मेरी आई तो मैंने माँ का नाम लिखा। किसी के हिस्से में दुका, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई। अरे मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो माँ जब आपको तैयार करके भेजती है तो उसके दिल में, उसके चेहरे पर वो तेज, वो आशा, वो उम्मीद रहती होगी। साथियों, इस दुनिया में यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं हमारे, इस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सबसे बड़े हस्ताक्षर नीमका थाना जिले के यहाँ बैठे हुए हैं मिस्टर राजेश बराड़िया सर। प्रशासन क्षेत्र के बहुत बड़े हस्ताक्षर हमारे बीच में बैठे मिस्टर अनुज जी ढाल, और एजुकेशन के बहुत बड़े सिग्नेचर हमारे बीच में बैठे मिस्टर संपत जी बेनीवाल। इन सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि पिता के लिए बहुत कुछ, माता के लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन पिता के लिए नहीं कहा। पिता 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 रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता लंबी से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो सब खिलौने अपने हैं, और पिता है तो दुनिया के सारे सपने अपने हैं। जिंदगी, साथियों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। अरे ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, तुम कभी जुगनू का भी रोशनी का मोहताज नहीं होता। आप जीपीएस के जुगनू हो,
उसके पास में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली है। फिल्मी दुनिया के लोगों को घमंड है कि उसके पास में अमिताभ बच्चन है, लेकिन हम आगवाड़ी वाले और सिरोही वालों को घमंड है कि हमारे पास जीपीएस है। हमें इस बात का घमंड है कि हमारे पास में अल्ट्राटेक है, हमारे पास में जीपीएस है और हमारे पास में डायनेमिक पर्सनालिटी जैसे लोग, अनुचित ढाल जैसे लोग हैं। साथियों, जब बात शिक्षा की चलती है तो आज हम कभी बाहर जाया करते तो देखते थे कि ऐसे इंस्टीट्यूट क्या हमारी भी होगी, लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूं डायरेक्टर बेनीवाल सर को कि उन्होंने इस नीमका थाना जिले के अपने क्षेत्र में लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि एनवायरमेंट एजुकेशन एक शुद्ध एनवायरमेंट में तैयार होती है और वो एनवायरमेंट आपने दिया है। हम लोगों का सपना हुआ करता था कभी इतने बड़े परिसर में जाने का। हम लोग सोचा करते थे कि क्या शायद ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान के वाक्यों में ही हमारी शिक्षा पूरी होगी, लेकिन शिक्षा में आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है। बच्चों में जो स्किल डेवलपमेंट आप कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। जब आप देखेंगे सर, यही बच्चे जब आपके पढ़ लिख करके शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जाएंगे तो इन्हीं बच्चों के मुंह से, दिल से एक आवाज आएगी, जय जीपीएस, अजय जीपीएस। ये कहने की मादा, ये कहने की ताकत यदि किसी में है तो ज्ञान से भरे हुए उन शिक्षकों के द्वारा तैयार किए गए इन चंद्रगुप्तों में है। ये चंद्रगुप्त भारत के नौनिहाल हैं जो आगे बढ़ करके अपने माँ बाप का नाम ही नहीं अपितु शेखा वाटिका, दमरा वाटिका और जीपीएस का नाम रोशन करेंगे। आज ये कार्यक्रम इसलिए नहीं है कि बच्चों की काउंसलिंग है। डायरेक्टर सर का मेरे पास जब फोन गया तो पहला मेरा वाक्य था कि जय जीपीएस, और साहब जोर जोर से हंसने लगे। बोला आप तो शाम को भी जब थके हुए होते तो ये शब्द मैं सुनता हूँ तो प्रफुल्लित हो जाता हूँ। मैंने कहा जब आदमी थक करके शाम को जब अपने पसीने की बदबू को सूंघता है तो उसके अंदर वो त्याग, वो तपस्या और बल, वो साधना की पराकाष्ठा पैदा होती है। मेरा सर से निवेदन करूंगा, सर जब आपके घर में बल, दान, त्याग, धन, ज्ञान ये आते हैं तो भगवान तुम्हें बेटा पैदा करता है तुम्हारे घर में। लेकिन जब तुम्हारे घर में दया, करुणा, त्याग, तपस्या, विद्या, आराधना, तपस्या ये सब आती हैं तो भगवान तुम्हारे घर में बेटी पैदा करता है। ये बेटियां, ये बेटे इस भारत की शान है। कहते हैं ना हमारे घर में बेटा हुआ है, मैं उन लोगों से कहता हूँ बेटा भाग्य से होता है और बेटियां सौभाग्य से होती हैं। हमें ये बदलने की जरूरत है मानसिकता को। आज जब हम देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अनुज जी सर बैठे यहाँ, हम अखबार पढ़ते हैं, देखते हैं कोटा के एक बच्चे ने फांसी का फंदा चूम लिया, एक बेटी ने ऐसा कर लिया। याद करो मेवाड़ की उस प्रताप को जिसके सामने केवल दो ही ऑप्शन थे, या तो मौत या फिर मुगलों की गुलामी। उन्होंने केवल ना तो मौत को चुना और ना गुलामी को चुना, उन्होंने चुना तो केवल स्वाधीनता की लड़ाई को चुना। और उसके बेटे जब हम देखते तो उनके बेटे फांसी खाए। चमक कोटी 57 की वह तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई पुनः जवानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उसकी संतानें ये काम करें, ये शोभा नहीं देती है। ये भारत की तस्वीर नहीं हो सकती, शायद भारत की तस्वीर कुछ और हो सकती है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। हम जिएंगे तो इसी के लिए और मरेंगे तो इसी के लिए। और मरने के बाद गंगा में बहती हुई हमारी हड्डियों से कोई कान लगा करके सुनेगा तो केवल एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं धन्यवाद देता हूँ डायरेक्टर सर को, यहाँ के मैनेजमेंट को, आपने मुझे बुलाया उसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जीपीएस।
पूरी फैकल्टी और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2-4 में मुझे जो लगी इस सिनेरियो को देखते हुए या मैंने अब तक जो मेरे एक्सपीरियंस से जो सीखा है वो 2-4 बातें जो हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो मैं शेयर करूँगा। ऊपर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो 2 मिनट ध्यान से सुने। द डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इसके लिए मैंने एक एग्जाम दिया है। हम ये बात करते हैं कि क्या मैं बचपन से ही पुलिस ऑफिसर था? कोई एक बच्चा जल्दी फ्रीक्वेंटली, क्योंकि टाइम है 5-7 मिनट का, वी हैव ओनली द टाइम टू 5 to 7 मिनट्स। कोई बच्चा, क्या मैं बचपन से पुलिस ऑफिसर था? तो कब बना हूँ? रिसेंटली बना हूँ। कोई एग्जाम दिया होगा मैंने जिसकी वजह से मैं पुलिस ऑफिसर बना। तो मैं बचपन में क्या था? आपकी तरह स्टूडेंट ही था। मैंने भी नर्सरी की हुई है और 12th तक किसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की हुई। तो क्या आपके टाइम में मैं क्या करता था? आपके टाइम में मैं क्या करता था वो 2 मिनट में बात करते हैं अपन। अभी आपका जो स्कूल है वो बहुत फैसिलिटेटेड, बहुत रिसोर्सफुल और बहुत लीजेंडरी पर्सन्स के द्वारा लीड किया जाने वाला स्कूल है। हम ऐसे स्कूल्स में नहीं पढ़े हुए। हमारे स्कूल्स की बताओ, हम स्कूल में पिटते थे टीचर से, फिर जो रास्ते में मिलता था उसको कहते थे कि हमें आज स्कूल में पिटाई की है, तो वो रास्ते वाला और पीटता था और कान पकड़े घर छोड़ के आता था। और घर छोड़ने के बाद घर वाले पीटते थे कि किस वजह से पिटाई की तुम्हारी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम हमारी छोटी सी गलती पे घर वालों की खूब डांट सुनते थे और खूब फिजिकल जो पनिशमेंट होती है ना, जैसे सच में कान यूं लाल कर देना मरोड़ के, और सच में मुंह पे या गाल पे थप्पड़ मारना। और हमारे टीचर्स हमें सच में मारते थे और तब तक मारते थे जब तक हाथ यूं सूना नहीं हो जाता, जैसे दर्द होना बंद हो जाता तब तक मारते थे। आपके टीचर्स और आपके फैकल्टी मेंबर देखो कितने साफ सुथरे यूं गोरे चिट्टे से आपके टीचर हैं, जो मुझे नहीं लगता कि आपको, क्योंकि इनकी फेशियल एक्सप्रेशन देखने के बाद, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, इनके आपके जो फैकल्टी मेंबर है उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको पीटते भी होंगे या डांटते भी होंगे। इस बात को करने का क्या मतलब हुआ? देखो, हमने हमारे जीवन में कभी किसी बात को अपने दिमाग में रखा ही नहीं। जैसे हमारे दिन में खूब पिटाई हुई, खूब सुताई हुई, घर वालों ने पीट दिया, टीचर से डांट दिया, 10 घर के जितने मेंबर है वो अलग अलग डांट रहे, पीट रहे, लेकिन हमने कभी अपनी बात दिमाग में रखी नहीं। हमने कहा जैसे से आज का दिन गुजरे, कल वही उसी चीज से फिर वैसे शुरुआत करेंगे, दोबारा पिट जाए भले। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कभी अपने दिमाग में किसी भी चीज का प्रेशर नहीं लिया और न हमने कभी अपने साथी की, किसी स्टूडेंट की टीजिंग की है। टीजिंग समझते हो आप? छेड़ना, उसको दुत्कारना या कोई गलत बात करना या गाली गलौज करना। देखो, हमने जो जीवन जिया है, या हम जिस टाइम में आपकी तरह यहाँ प्रेयर में बैठे हो, असेंबली में बैठे थे या बैठे थे जिस टाइम में हमारी स्कूलिंग हुई थी, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं थी। घर वालों का प्रेशर था। पेरेंटिंग क्या थी? पेरेंटिंग उस टाइम ये थी कि आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तो आप डर में पढ़ोगे, ये तो बात हुई। लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में मैंने देखा है कि हर बच्चा, किसी बच्चे को थोड़ा सा डांट दो तो उसको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ रिस्पेक्ट?
योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ फेक फॉर यू ऑल। आपकी अभी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। हम आपको कोई एक एंटिटी या एज ए पर्सन नहीं जानते, हम आपको एक बच्चे की तरह जानते हैं। हम आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कंसिडर नहीं करते। इसका मतलब क्या है? आपको जो करना है वो करो, जो पूछना है वो पूछो, जो एक्टिविटी करनी है वो एक्टिविटी करो। अगर आपको कोई डांट देता है, आपके पेरेंट्स आपको डांट देते हैं या कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिसको आपको ये लगे आपकी जिद को रोकने की कोशिश करते हैं, तो उसको एक ऐसी अदरवाइज कभी नहीं लेना है। मैंने बहुत जगह देखा है कि बच्चे जो है वो पेरेंट्स के सामने हो जाते हैं किसी बात को लेके। आप उनको मोबाइल, जैसे आप मोबाइल बहुत यूज करते हो, हमारे टाइम में मोबाइल नहीं थे। आपने मोबाइल कुछ देखना शुरू किया, आपकी मम्मी ने आपसे मोबाइल लिया, फिर आप अपनी मम्मी पे गुस्सा हो जाते हैं। क्या ये बात सही है? तो अब मेरे पीछे एक बात बोलो कि मैं आज के बाद मेरे स्कूल के होमवर्क के अलावा किसी और काम के लिए अपने पेरेंट्स का मोबाइल अपने हाथ में नहीं लूंगा या नहीं लूंगी। अब ये आप सुनो मेरी बात, आप असेंबली में बैठे हो, ये पीछे क्या है? माँ सरस्वती की साक्षात मूर्ति है ना। तो आपने इनके सामने ये ओथ ली है कि मैं आज के बाद अपने माता या पिता, अपने पेरेंट्स का, किसी का भी मोबाइल अपने होमवर्क के अलावा कभी काम में नहीं लूंगा या नहीं लूंगी। अब दूसरी बात पे आते हैं। देखो क्या होता है, कई बार होमवर्क का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चा मान लो एब्सेंट हुआ। चलो आपके चेयरमैन सर कह रहे हैं कि हमारा होमवर्क भी हम ग्रुप्स पे या ऑनलाइन जो भी आपकी फैसिलिटी है उन पे नहीं डालेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा आप ये देखो, क्या हमारे टाइम में आप जैसे लोग बच्चे बैठे हैं उतने लोगों की चश्मा थी क्या? मेरे चश्मा लगी हुई है, आप लोगों की इतनी चश्मा क्यों लगी हुई है? क्यों लगी हुई चश्मा? आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, आप मोबाइल बहुत देखते हो। मैं तो ये कहता हूँ इससे अच्छा टीवी देख लो। मोबाइल आपने छोड़ दिया तो यूं मान के चलो कि आप अपने लाइफ में बड़ा चेंजेस जो आता है ना, जो लेने की कोशिश करते हो, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन है आपके लिए। अब दूसरी बात अपन बात करते हैं पढ़ाई की। क्या सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है या स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज या कल्चर या कोई ऐसी चीजें भी इंपॉर्टेंट है? देखो हमारे टाइम में क्या था, सिर्फ एजुकेशन थी, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब आपके लिए पढ़ाई के साथ साथ, मतलब आपकी बुक्स के साथ साथ आपकी टोटल जो भी एक्टिविटीज है। अब मुझे ये कहते कि आपको दूसरी क्लास में एडमिशन देते जीपीएस पब्लिक स्कूल में, मान लो चेयरमैन सर ये कहते कि मैं ये इनको रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी क्लास में एडमिशन दे दो, मैं एक बच्चे की तरह रहना चाहता हूँ। मैं पता क्या करूँ? सबसे ज़्यादा मुझे ये लगेगा पढ़ तो मैं लूँगा, कोई बात नहीं है, मुझे डांस करना है, मुझे गिटार सीखना है, मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे बैडमिंटन खेलना है, मुझे हॉकी खेलना है, मुझे कोई ऐसा स्पोर्ट्स जो मेरा क्या फेवरेट है। और मैं कम से कम एक स्पोर्ट्स, कम से कम एक, हमारे इंडिया में कितना कल्चर है डांस का, कम से कम एक डांस की फॉर्म और कम से कम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर सीखूं। Mrs. and Mr. Anush Khan, Mr. Rajesh Radia ji, Mrs. Rajesh Radia, Shri Sanjay Ji Sastri, our source of inspiration and always ready when we call. Our parents were again our source of energy, inspiration and motivation. Honorable Chairman Sir, Shri Sampath Ji Beniwal, my guide, mentor, Mr. K. Sendra Ji, Director of DBS, always ready for every work
my helping hand, Mr. Ajay Dayal, administrator, my coordinators and team of teachers. I feel proud today on this occasion of investiture ceremony to welcome you all in the premises of Huda Public School, Neemka Thana. Today, this Students' Council that you witnessed has a great responsibility to run not only the academic, administrative and other activities also in the school premises. Today, the oath that was taken from all these students as school head girl, deputy head boy, head girl, and secretary, house captains, and other all the posts, they have the great responsibility to run the school. And all these responsibilities, they will make them just to choose the path of the leadership in their future endeavors, and they are the future of the country, and this is the only platform, the school, where as and when they take the responsibilities, they learn a lot of things. Other students, though they are not given this responsibility in coming years, they will also hold all these costs and the responsibilities. Dear students, this student council is a role model in front of you. So today, I will advocate to this student council, being the model to all these students. You are supposed to be dedicated in your duties. You should take all the responsibility with the determination, and you should be the role model of discipline in front of these students. Because from today onwards, all the school, administrative work, in academics, in co-curricular activities and sports, everywhere, your role, that will have the eminent role in your life. So, now, I am highly thankful to the Honorable Chief Guest that he has spared the time to motivate our students, and the way he has motivated to my team, my students, that is highly praiseworthy. And I hope all the students, even my faculty members also, they will keep your words with them, and they will definitely try to follow your words, sir. Next, I am highly thankful to Mr. Rajesh Rajaji also that he has spared the time to witness this function, and the motivation speech that is given by our Honorable Shastri Ji, really, that will work as a tonic to the students. Because this is also the requirement of the time that students, they should also be aware about the culture of our country, our ancient Shastras also, the way earlier he performed the Havan here, that was also a real, the imprint on the mind of the students, because all these activities, they are included in all-round development of the students. And our culture of India, that is very strong, because we have all these things. And as our Shastri Ji and our chief guest, they told you students, this is the platform only where you learn all these things, because this is the factory of the future India. And all my team, they are your guru. I am not saying teacher, but due to this, the change of this time, the guru has become the teacher. So I request all these teachers not to be teacher, be a guru to the students. That's why you will imbibe the good qualities in the students. In my next series, I am highly thankful to the parents. Only a single call, they have witnessed this function,
they have witnessed how they will work and how they are just given the responsibility in Students' Council. I am highly thankful to my music teacher, to my arts teacher, to my dance teacher, that they have prepared all these students to make this function a graceful function. Again, I am highly thankful to my team of teachers, as and when their services they were required, they spared the time and they maintained the discipline without any suffering of the academic affairs. I am highly thankful to the non-teaching staff also for their valuable services to make this function a grand function. So not taking too much time because already there is high time. Again, I am thankful to all of you for the presence and the sparing your valuable time, and I request all this student council be a role model in front of these students. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.